Assalamu alaikum students. Welcome to the facts of stats. Linear regression analysis is the main topic for today's discussion. The regression line y on x, y head is equals to byx into x minus x bar, where byx is regression coefficient. Let's start it. Regression. Normal equations, the regression line y on x and x on y, method of least square and its problems are main concerns for today's lecture. What is regression? Regression is concerned with the study of relationship among the variables. Regression है क्या जी? Regression basically variables के relationship को evaluate करता है. Either the variables are positively related or independent variable on dependent variable. The aim of regression is to make model for the prediction and for making other inferences. Straight line y is equals to a plus bx. Two variables or more than two variables may be traded by regression. Regression के जरिए हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप. Equation of straight line y is equals to a plus bx, where y is dependent variable. And what is the dependent variable? Regressant or predictant. अब ये है क्या predictant or regressant is called dependent variable. The variable which is influenced by the independent variable is called dependent or regressant. ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस हो, उसकी वैल्यू अपवर्ड मूव करे और डाउनवर्ड मूव करे, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसेंट. देन एक्स क्या है जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसर, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रीडिक्टर. द वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड रिग्रेसर और प्रीडिक्टर. बाय द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड रिग्रेसर or predictor. B is called slope of a line or regression coefficient. Okay, अब slope क्या है? The average change in dependent variable for unit change in independent variable is called regression coefficient. Slope क्या है जी? Average coefficient. Regression coefficient B, it may be positive or may be negative. It depends upon the relationship of variables. Then a क्या है जी? A is intercept, y's value when x is equals to 0. From this diagram, from this curve, from this diagram, this is clear. This point is intercept. ऐसा point जहाँ पे x की value 0 हो और y की definitely कोई defined value होगी. Okay, this is called intercept. Origin से यहाँ तक, this is called a or intercept. Y is equals to a plus bx, method of least square, or how to write the normal equations. हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई y is equals to a plus bx. इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. देन सिग्मा इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड. सिग्मा y is equals to na. रीजन a के साथ n क्यों आया? बिकॉज सम ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो n इज जस्ट एवरी नंबर जो आपके ऑब्जर्वेशंस को शो करेगा. Plus b sigma x. To find the normal equation for b, equation 1, that is this one, is multiplied by x on both sides. तो क्या हो जाता है ये जी? सिग्मा y अब क्या बन जाता है? सिग्मा एक्स वाई. पहले ये सिग्मा y था, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाता है? इज इक्वल्स टू a सिग्मा x. n खत्म हो गया और इसकी जगह क्या आ गया? सिग्मा x, बिकॉज अब एक वेरिएबल आ चुका है तो n खत्म हो जाएगा. प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर आ गया. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन फॉर b. e क्या है जी? एरर, दैट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज डिनोटेड बाय y हेड. y क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड y हेड इज एस्टिमेटेड वैल्यू. नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर हमें एक टेबल गिवन है. ओके, एंड वी हैव टू कंप्यूट
the regression line of sales on test score estimated the most probable daily sales if the salesman makes a score of 80. Let's start it. ये रिक्वायर्ड है जी, हमारे पास बेसिक दो कॉलम्स गिवन है. वंस अगेन बैक स्लाइड. x और y की दोनों वैल्यूज हमें गिवन है. First of all, x bar and y bar. How to find x bar? Sum of x observations divided by number of observation, जो कि 10 है. Then y bar, sigma y that is 60 and divided by n. तो क्या आ जाता है जी? 60 by 10 6 and 50 by 10 65. Then regression coefficient y on x. Y on x क्या है? byx. This is regression. This is regression coefficient y on x. Its formula product of x minus x bar into y minus y bar divided by sigma x minus x bar whole का स्क्वायर. तो मैं ये तीनों पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं. प्रीवियस स्लाइड. x minus x bar, x minus x bar. x bar कितने जी? 65. 45 minus 65 then minus 20. 75 minus 65 plus 10. 55 minus 65 minus 10. 65 minus 65 0. In the same way sum of x minus x bar is 0. इसी तरह से y minus y bar वो फाइंड आउट कर लेंगे और इसका सम भी 0 आना चाहिए. Then product of these two columns x minus x bar into y minus y bar. Minus 20 into minus 1. Minus minus plus 21 is the 20. 10 into 1 10. ठीक है जी. ये इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट आ गया x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. इसका सम आ गया 320. देन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400. 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100. इन द सेम वे सम ऑफ दिस कॉलम इज इक्वल्स टू 2400. By putting the values in this formula, 320 by 2400 and byx is equals to 0.13. The regression line y on x is y hat minus y bar is equals to byx into x minus x bar. By putting the values in this equation, y bar की value is 6, byx 0.13, x minus x bar where x bar is 65. Values put out कर दी और minus 6 on the other hand side plus 6. इन सबको सिंप्लीफाई किया तो y hat क्या आ जाता है जी? 0.13x minus 2.45. नाउ x की वैल्यू में गिवन है दैट इज 80. इसको मैं पुट किया x की जगह पे. देन y hat क्या आ जाता है 7.95 और अप्रोक्सीमेटली 8. Another numerical is given. इस टेबल में हमारे पास x और y की वैल्यूज गिवन है. Determine the regression equation taking x as a independent variable. Find the estimated values of y for the given values of x, and we have to find y head. Okay, estimated क्या y head है, and show that e that is error difference between observed value and estimated value कि इसका sum क्या आना चाहिए 0, and also calculate sum of square of error. ये हमने फाइंड आउट करना है. First of all, regression equation y on x. Y is equals to a plus bx. Then method of least square. की नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनती हैं? सिग्मा y n a. पूरी पे सिग्मा अप्लाई किया, कांस्टेंट है तो उसके साथ n आ जाएगा. b सिग्मा x. पूरी इक्वेशन को अगेन x से मल्टीप्लाई किया. सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर. नाउ इन दो इक्वेशंस के लिए हमें जो डाटा रिक्वायर्ड है वो हमने उस टेबल से फाइंड आउट करना है. सिग्मा वाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा x प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड सिग्मा x स्क्वायर. x ये आ गया हमारे पास एंड y ये आ गया. प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई दिस वन 10 into 90 900. इन द सेम वे x स्क्वायर रिक्वायर्ड है. देन स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. यहाँ तक तो हो गया डायरेक्ट हमारी टू नॉर्मल इक्वेशंस के साथ. 224 सिग्मा वाई 464 प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर. इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया उन्हीं दो नॉर्मल इक्वेशंस में.
जो हमने पहले फाइंड आउट की है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के जरिए। वैल्यूज पुट आउट कर दी। नाउ वी हैव टू इक्वेट कोफिशिएंट ए को हमने ख़त्म करना है। 224 को हमने डिवाइड किया 8 से तो हमारे पास आ जाता है 28। सो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 28 ऑन बोथ साइड्स। तुमने इक्वेशन 2 एज इट इज लिख दी। 224a प्लस 7368b इक्वल्स टू 11043। इक्वेशन 1 को 28 से मल्टीप्लाई किया। 8 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 224a। 224 इंटू 28 6272b एंड 464 मल्टीप्लाई 28 बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाता है। नाउ हमने डिफरेंस ले लिया इन दोनों इक्वेशंस का। माइनस 224a 224a ये कैंसिल हो गए। इन दोनों का डिफरेंस 1096b और इन दोनों का डिफरेंस माइनस 1949। दिस वन ऑन द अदर हैंड साइड डिवाइजर और b's वैल्यू इज माइनस 1.78। नाउ b की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। 8a 224 इंटू b और इक्वल्स टू 464। b की वैल्यू क्या है माइनस 1.78। देन a इज इक्वल्स टू 107.84। हमारे पास इक्वेशन ये आ गई y हेड इज इक्वल्स टू 107.84 माइनस 1.78x। दिस इज स्ट्रेट लाइन और एस्टिमेटेड regression equation. Now once again back slide। ये हमारी इक्वेशन आ गई जी y हेड इज इक्वल्स टू 107.84 माइनस 1.78x। अब हुआ क्या जी, यहाँ पे हमने हर x की जगह पे पहले 10 पुट किया तो क्या आता है 90, देन 15 पुट किया तो क्या आता है 81.14। इन द सेम वे हमने ये सारे का सारा फाइंड आउट कर लिया। सिग्मा y हेड, सिग्मा y एंड सिग्मा y हेड मस्ट बी इक्वल। ये भी 464 आ रहा है एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 464। नाउ व्हाट इज e? e इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। इनका हमने डिफरेंस लेना है। तो क्या आ गया जी, ये y और दिस इज y हेड 90 माइनस 90.04। ये क्या आता है माइनस 0.04। देन 80 माइनस 81.14 इसका और इस वैल्यू का डिफरेंस y माइनस y हेड माइनस 1.14। इन द सेम वे इन सबको ऐड अप कर लिया जाए तो इसका सम क्या आता है 0 एंड इट्स प्रूव दैट कि सिग्मा e इज इक्वल्स टू y माइनस y हेड इज इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर s e। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर y माइनस y हेड होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हर वैल्यू का स्क्वायर ले लिया तो ये कितना आता है 38.12 सिग्मा ई स्क्वायर। कि हर नेगेटिव नंबर बिकम्स, ईच नेगेटिव नंबर बिकम्स पॉजिटिव नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है जी? The regression line y head is equals to a plus bx. The following properties: y head is equals to a plus bx. It means that the line passes through the means x bar and y bar. The sum of error is equals to 0. हमारे previous numerical में proof हो गया है कि sum of error is equals to 0. The regression equation y head is equals to a plus bx and the sum of deviation of observed value y from the estimated sigma y minus y head। इसका सम किसके इक्वल आता है 0 के। बट नाउ y हेड किसके इक्वल है जी? y हेड की हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू, या हम लिख देते हैं हेड a प्लस b x। ओके, y हेड इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये फार्मूले का माइनस, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं, माइनस a माइनस बी एक्स। पुट आउट कर दी सिग्मा y माइनस एन ए माइनस बी सिग्मा x। तो सिग्मा y भी इसी फैक्टर के इक्वल है। अगर इसको हम यहाँ पुट करते हैं इसकी जगह पे तो ये क्या आ जाता है एन ए बी सिग्मा x। तो ये दोनों 0।
sigma y minus y head is equals to 0, it means sigma y is equals to sigma y head, और y head क्या एस्टिमेटेड वैल्यू, इसको हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में चेक भी किया है कि सम ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू द sigma y head. The regression equation y on x can also be written as y head minus y bar is equals to sxy over s square x into x minus x bar, and byx is regression coefficient. In the same way, regression equation x on y can also be written as x head minus x bar, standard deviation xy यानी कोवेरियंस इनका आ गया s square y minus y bar. In the same way, ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है x on y, जबकि ये क्या था b y x y on x, सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा y माइनस y बार होल का स्क्वायर, और दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस फॉर्मूला. Another numerical, third question, compute the regression lines. Compute the regression lines of x on y and y on x on the basis of following information. Sigma y given t, sigma y is 60, and sigma x y 350, x bar 5 and y bar is 6. Solution x bar, we have to find out n कि number of observations कितनी थी. इस फार्मूले में पुट कर दिया, सिग्मा एक्स गिवन है 50, एक्स बार भी गिवन है 5, सो n इज इक्वल्स टू 10. अब एस एक्स वाई फाइंड करना है. फार्मूला क्या है 1 बाई एन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन. बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5. नाउ द रिग्रेशन इक्वेशन, the regression coefficient of x on y, bxy is equals to sxy over s squares y, 5 by 9. Then regression line x on a y, x head minus x bar is equals to bxy y minus y bar. By putting the values in this equation, minus 5 on the other hand side plus 5 और 5 by 9 inside the bracket multiply कर दिया, तो ये क्या आ जाता है जी 5 by 9 y minus 5 by 9 y minus 30 by 9, ये फैक्टर इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस 5 ऑन द अदर हैंड साइड प्लस 5, इस सारे को एलसीएम से सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है 15 by 9, एंड एक्स हेड इज इक्वल्स टू 1.67 प्लस 0.56 y. दिस इज a प्लस b x एंड स्लोप इज पॉजिटिव 0.56. ओके, स्लोप क्या है 0.56, इंटरसेप्ट क्या है 1.67. नाउ regression coefficient of y on x, byx is equals to sxy over s square x, 5 by 2 का स्क्वायर 5 by 4, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया. Another values are also put in this equation. minus 6 on the other side plus 6 बन जाता है, और इस फैक्टर को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम से सिंप्लीफाई कर दिया तो 5 by 4x minus 1 by 4. In this equation, intercept value is negative, that is minus 0.25 is a, and slope is positive 1.25 is slope. Y head is equals to 1.25x minus 0.25, ये क्या है जी a की वैल्यू है. If you have any query, you can email me at this ID. Thanks for watching and click on the link given below for more conceptual topics.